Hare Krishna
Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gora Hari Bol Gaur Premanande Hari Bol सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 Hare Krishna. Happy New Year. We sincerely pray at the lotus feet of Shashi Kishore Kishori and Gaur Nitai that they fulfill all your desires. And not just this year, but all the years to come may be very happy for all of you. And may that happiness be one which can never be taken away. And it increases every day, not decrease. So it should be, it will be in the form that it will always increase in your heart. It will show up on your face. And whomever you come in contact with, you will give your happiness to them also. So that is my prayer. आप सबके ऊपर कृपा हो जाए तो हम पे भी करिएगा। आज हैरिसबर्ग से कुछ भक्त आने वाले हैं। उन्होंने वहाँ पे चर्च लिया है मंदिर के लिए, तो उसके लिए छोटा सा प्रेजेंटेशन करूँ। और मैं सोच रहा था कि इसके बारे में कुछ बोला जाए। धीर कृष्ण प्रभु तुंग विद्या माता जी भी इंडिया से पधारे वापस, तो कई भक्तों के लिए ठाकुर जी लेके आए हैं इंडिया से। तो थोड़ा सा ठाकुर जी के बारे में ही बोल लिया जाए, उनकी महिमा। भगवान अपने भक्तों के लिए अनेक रूप से प्रकट रहते हैं। 5 मुख्य रूप से भगवान प्रकट होते हैं। और ये अवतार नहीं है, भगवान is accessible in different forms, and those forms are called para, vyuha, vyoma, antaryami and archa. para का मतलब है, we hear the word Parabrahma, right? Para means the topmost. He is manifested himself in the form of para. Para means he himself, the Supreme Lord. And then there is Vyuha,
where he expands himself into Vasudeva, Anirudh, Sankarshan and Pradyumna in order to do the work. He's also Vyoma. He is present in each and every element, and he's taking care of this material world in different incarnations like Purusha Avatar, Lila Avatar, so on. And अंतर्यामी, हम सब के हृदय के अंदर भगवान अंतर्यामी रूप से भी विराजमान है। अगर ठाकुर जी अंतर्यामी रूप से विराजमान ना हो तो घाटा भगवान को ही है ज्यादा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। इसलिए भगवान सोच रहे हैं कि मैं कैसे इसको एक पल अलग ना छोड़ूं अपने से। इसलिए कौन कौन के हृदय के अंदर भगवान बस जाते हैं। सबके हृदय के अंदर भगवान परमात्मा स्वरूप से विराजमान है, कभी नहीं छोड़ते साथ। Whether we remain in a human body or in a body of a dog or a worm or a bird or a tree or a grass, Sri Krishna never leaves us even for a moment. यहाँ पे एक शब्द यूज फ्रेज होता है फेयर वेदर फ्रेंड्स। देखा जाता है दोस्त और परिवार जब तक सब ठीक है तब तक साथ में रहते हैं, पर ठाकुर जी कुछ ठीक है या नहीं है, आप गाली दें या प्रेम करें, भगवान हमेशा साथ में रहते हैं। गोपियां भगवान से प्रार्थना करती है, अस्लिस्या वा पदार्थम पिनस्तु माम अद्रसनम मर्महतम करोतु वा यथा तथा वा विदाधातु लंपटो मत प्राणानाथास्तु देव सर्व नापर। हे भगवान, आप हमें कस के अपने बाहों में जकड़ ले, अपने छाती से लगावे, या आप हमें वज्र समान लात मार के दूर फेंक दे। हमारे लिए तो आप ही हमारे नाथ हैं हर एक क्षण। गोपियां भगवान से ये बात कहती हैं, पर भगवान तो हमेशा ये बात हमसे भी कहते रहते हैं कि आप भले हमें गाली दे, आप मुझे माने या ना माने, आप मेरी सेवा करें या ना करें, मुझसे कुछ संबंध रखें या ना रखें, मैं आपसे संबंध कभी नहीं छोड़ूंगा। हम सब चाहते हैं ना ऐसा मित्र जीवन में, ऐसा परिवार, ऐसा पुत्र, ऐसी पत्नी, ऐसा पति, जो कुछ भी हो जाए प्रेम एक पल भी कम न हो, बढ़ता ही रहे और कभी हमसे दूर न जाए। तो भगवान ये रिलेशनशिप हमसे बांध के बैठे हैं अंतर्यामी स्वरूप से। पर जानते हैं कि मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, हम सब लोग we still will be too much attracted to the material world and we won't be able to see him properly or create a relationship with him properly. And Krishna presents himself in the fifth form, which is Archa Vigraha form. And this Archa Vigraha form is very accessible to everybody. Paramatma form, Vyuha form, Para form, Vyoma, ये सब accessible नहीं है। हम कब देख पाएंगे भगवान को अपनी आंखों से? गोलोक वृंदावन में मुरली बजाते हुए, बहुत दूर की बात है। पर कोई भी व्यक्ति भगवान को उनके अर्चा विग्रह फॉर्म में देख सकता है। No qualification required. Any person, whether, and not only a person, any living entity, even a cat, a dog and a cat can also see. तो भगवान बड़ी कृपा करके अर्चा विग्रह स्वरूप में पधारते हैं यहाँ पे, जिससे उनकी सेवा कर कर हम उनके साथ कुछ संबंध बना पाए। मैं जब यहाँ से आ रहा था तो श्रीनाथ जी का मंदिर रास्ते में पड़ता है, कभी हृदय में ठाकुर जी ने प्रेरणा करी कि उनके बारे में कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि अर्चा विग्रह से बहुत कनेक्टेड है। आप में से कितने लोगों को पता है श्रीनाथ जी भगवान किस तरह से पधारे यहाँ पे? श्रीनाथ जी भगवान 5000 साल पहले भगवान के ग्रेट ग्रैंडसन बद्रीनाथ जी, he consulted his grandmother Uttara. Uttara was only alive. All the Pandavas, they died. They went to the forest. They left their body. कुरु पांडु कुल से अब कोई नहीं, बद्रीनाथ जी थे, क्योंकि यादव कुल भी पूरा नाश हो चुका था। बद्रीनाथ जी भगवान के पुत्र हैं। और माँ उत्तरा थी तो उनसे पूछते थे कि भगवान कृष्ण कैसे दिखते थे, आप हमें बताइए। तो माँ उत्तरा के कहने पर उन्होंने कई विग्रह बनवाए, उनकी स्थापना करी वृंदावन में। उनमें से एक है श्रीनाथ जी, जो नाथ द्वारा में विराजमान है, जिन यहाँ पे देखे जाते हैं।
ऐसे पर्वत उठाए हुए। श्रीनाथ जी ऐसे देखने में लगता है that he is standing alone, but really he is युगल स्वरूप। If you closely watch the picture of Srinath ji, there is a small choti coming out behind his head, and he's not making a fashion। आजकल की बच्चियां फैशन करते हैं ना, एक दो ब्रेड्स बनाती है, बाकी सब खुले बाल होते हैं, ऐसा नहीं है। Srinath ji has one choti coming out, it's flying in the air, that is Srimati Radharani standing hiding behind Srinath ji। तो भगवान युगल स्वरूप में उनकी सेवा है, पर अकेले दिखते हैं। राधा रानी वहाँ प्रकाशमान नहीं है, सिर्फ उनकी चोटी दिखती है। तो 5000 साल पहले उनको स्थापित किया था बद्रीनाथ जी ने, पर काल के समय से बहुत इंडिया पे हमेशा आक्रमण हुआ करते थे मुगलों के और अफगानों के, और उसकी वजह से जैनिज्म, बुद्धिज्म फिर प्रिवेल होता था, और फिर some other Shakti Sampradaya would prevail and so on. So then worship of Krishna would go down sometimes, right? क्योंकि हमेशा एक फेज चलता है। तो ठाकुर जी का मंदिर टूट गया था, ठाकुर जी की सेवा बंद हो चुकी थी। आज से करीबन 500 साल पहले एक साधु थे जिसका नाम माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी जी माधव संप्रदाय से हैं, मध्वाचार्य के लाइन में आते हैं। माधवेंद्र पुरी वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे। He was roaming around in Vrindavan. And Madhavendra Puri had a vrat that he will not ask to anybody for anything. अयाची का वृत्ति जिसको कहा जाता है। अयाची का माने जो भगवान की कृपा से मिल जाए उतना ही स्वीकार करना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं स्वीकार करना। तो माधवेंद्र पुरी भिक्षा नहीं मांगते थे, जितना कोई सामने से दे देता था वो लेके अपना जीवन निर्वाह करते थे और भगवान का भजन करते थे। बहुत उच्च कोटि के संत थे माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी एक बार गोवर्धन के पास विराजमान थे, वहां भगवान का भजन कर रहे थे। 2-3 दिन से उनको कुछ खाना नहीं मिला था, तो फिर भी भूख से कुछ व्याकुल नहीं थे कि मुंह लटका के बैठे और कोई मुंह देख के उनको कुछ खाना वाना दे दे, ऐसा कुछ नहीं था। परम आनंद में रहते थे माधवेंद्र पुरी जी। तो संध्या समय ही था। आज भी आप जाएंगे वृंदावन, गोविंद कुंड है, गोविंद कुंड के पास एक बड़ा सा पेड़ है, उस पे चबूतरा बना हुआ है, और वहां पे माधवेंद्र पुरी जी की बैठक है। वहीं पे वो विराजमान थे जब एक छोटा सा बालक, he was very beautiful, he came, he had a stick in his hand, so it looked like he was herding cows, and he had a milk pot in his hand, and he says, बाबा आप ये गांव में नए आए हो? तो माधवेंद्र पुरी से, हाँ बेटा मैं नया आया हूँ, मैं भ्रमण करता हूँ, मैं यति हूँ। तो बोले बाबा तुम 2-3 दिन से कुछ खाए नहीं? बोले तुमको कैसे पता? तो बोले हमारी जब गांव की लड़कियां है वो खबर रखती है कौन साधु घूमता है इधर, कौन खाया कौन नहीं खाया, तो हमारी माँ ने आपके लिए दूध भेजा है, आप ले लीजिए। तो माधवेंद्र पुरी बोले ठीक है दे दीजिए दूध, और बोले रुक 1 मिनट मैं दूध पी लेता हूँ। तो लड़का बोलता है नहीं नहीं आप पी लीजिए, मेरी गाय यहाँ चल रही है तो भाग जाएगी, तो आराम से पी लीजिए, मैं आके लेके जाता हूँ बर्तन अपना। माधवेंद्र पुरी जी सोचते थे कि मैंने अपना पूरा संसार त्याग दिया, साधु बन गया, कहीं से मुझे किसी पर इतना प्रेम नहीं होता, बालक को देख के मुझे इतना प्रेम क्यों नहीं होता कि इसको साथ में बिठाऊं, उसको अपने गले से लगाऊं, ऐसा कभी मेरा अट्रैक्शन नहीं हुआ किसी के लिए। तो माधवेंद्र पुरी सोचे कि बड़ा सुंदर बालक है, शायद उसकी वजह से हो सकता है, और बालक चला गया। माधवेंद्र पुरी दूध पीने लगे और दूध का एकदम सुंदर स्वाद आने लगा उनको। ऐसा दूध उन्होंने अपने जीवन में नहीं पिया था कभी। माधवेंद्र पुरी सोचने लगे अलौकिक दूध है। दूध पी के बर्तन वहां का वहां रखे, शाम हो गई वो बालक वापस बर्तन लेने नहीं आया। माधवेंद्र पुरी सोचने लगे चंचल तो लग ही रहा था बालक, आंखें भी इधर उधर घूम रही थी उसकी। भगवान कृष्ण की आंखें एक जगह पर टिकती नहीं है, वो हमेशा इधर उधर देखते ही रहता है। चंचल बालक होता है ना, उसका ऐसा होता है, कभी एक जगह टिक के नहीं बैठेंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हाथ पैर ऐसा ऐसा चलते रहते। तो भगवान बड़े चंचल है। माँ यशोदा उनको कभी कभी कहती थी कि आप बिल्कुल बंदर है। तो बंदर जितना चंचल होता है उतना चंचल ठाकुर जी है। तो और भगवान के सखा लोग भी बंदर हैं सब। भगवान जब माखन चोरी करने जाते थे तो बंदरों को खिलाते थे मक्खन बहुत।
जिन गोपी का भाव नहीं था भगवान के प्रति, उसका ज्यादातर मक्खन बंदरों को खिलाया करते थे ठाकुर जी। तो बंदर उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो माधवेंद्रपुरी बहुत राह देखे, बच्चा आया नहीं, सोचे चलो कल आएगा। रात को भजन करते करते माधवेंद्रपुरी जी की आंख लग गई, 12-1 बजे आंख लग गई। तो वही बच्चा सपने में आया, कहे बाबा तुम मुझे पहचानियो नहीं, मैं कृष्ण हूँ, और मुझे यहाँ किसी ने जमीन के अंदर जंगल में मुझे बंद करके रखा है और मुझे बहुत ताप हो रहा है, आप मुझे निकालिए। तो बाबा बोले सपना में मैं कैसे जानूं कहाँ है? तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि इस जगह पे मैं हूँ। माधवेंद्रपुरी तो नींद उड़ गई। तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए थे, अगले दिन रो रहे थे अपनी बदकिस्मती पे, मैं भगवान को पहचान नहीं पाया, मेरे सामने आके खड़े रह गए। और जो मटकी पड़ी थी भगवान की, उसको गले लगा रहे हैं घड़ी घड़ी। ठाकुर जी स्वयं मटकी देके गए। और दूसरे दिन सुबह होने की राह देख रहे हैं। जैसे ही 4-4:30 बजे, गांव में तो सब जग जाते हैं जल्दी, तो माधवेंद्रपुरी जी गांव में गए, सबको बुलाया बाहर और कहा कि मुझे रात को सपनों में भगवान आए थे। उन्होंने कहा कि फलानी जगह पे फॉरेस्ट में आई एम बरीड and I have been tormented by heat and lot of thorns are pricking me, मुझे बहुत कांटे चुभते हैं, आप मुझे बचा लीजिए। तो सब, और आपको जो खोदने के औजार हैं आप सब लेके आइए। गांव वाले सब माधवेंद्रपुरी जी के साथ गए। माधवेंद्रपुरी जी ने वो जगह बताई, वहाँ पे खोदना चालू किया और थोड़ी देर में वहाँ से श्रीनाथ जी का विग्रह, गोपाल जी का विग्रह निकला। उनको गोपाल जी कहते हैं। गोपाल जी का विग्रह ऊपर सब झाड़ी, वो कांटे वाले सब, वो सब झाड़ी सब पड़ी हुई थी। भगवान को निकाला उन्होंने, निकाल के सोचे कि अब उनको रखे कहाँ। तो गिरी गोवर्धन के पास ही है, आज भी वो जगह है जहाँ गोपाल जी प्रागट्य स्थली कही जाती है। वहाँ पे उनका दर्शन है, आज भी आप जाके दर्शन करनी चाहिए। माधवेंद्रपुरी जी की बैठक है जहाँ पे ठाकुर जी को दूध पिला के गए थे गोविंदपुर के पास। तो उन्होंने लिए ठाकुर जी को, गिरी गोवर्धन जी के ऊपर ठाकुर जी को उन्होंने विराजमान किए। ठाकुर जी तो 4 फुट के होंगे, इतने ही बड़े हैं, काले पत्थर से बने हुए हैं। उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लिया, नीचे रखा, ऊपर ठाकुर जी बिठाए, दूसरा पत्थर बाजू पे रखा और 2 पत्थर आसपास रख के ऊपर एक छत बना दिया। उसका ऐसा करके उन्होंने टेम्पररी, बहुत सारे इंडिया में गांव में इतने छोटे छोटे मंदिर देखे जाते हैं जो मेकशिफ्ट टेम्पल्स, ऐसा बनाया। गोपाल जी को वहां बिठाया। अब उन्होंने सोचा कि गोपाल जी बहुत, उनको ताप लग रहा था, उनको नहलाना चाहिए। तो उन्होंने सबसे कहा कि आप बहुत पानी भर के लाइए जमुना से, और दूध, दही, घी और हनी, पंचामृत से भगवान का स्नान कराना चालू किया। भगवान का बहुत अच्छे से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उनको लगा कि भगवान कितने टाइम से डटे होंगे यहाँ पे। अगर उनको ताप लग रहा था, कांटे चुभ रहे थे, तो भूख भी लगी होगी उनको। तो उनको लगा कि उनको कुछ खाना खिलाना चाहिए। तो आसपास गांव वालों से कहा कि आप कुछ भोग पका के ले आइए ठाकुर जी के लिए। उन्होंने भोग पका के ठाकुर जी के लाए। ठाकुर जी स्वयं भोग दोनों हाथों से खाना चालू किया। तो माधवेंद्रपुरी जी ने देखा कि अरे ये तो सब खा रहा है, लाला बहुत भूखा है। तो उन्होंने कहा और पका के लाइए। तो और पका के लाया, जितना लावे उतना लाला खाने लगे। अब तो माधवेंद्रपुरी को लगा ये बहुत भूखा लगता है, बहुत टाइम से डुबाया हुआ है जमीन में। तो आजू बाजू वाले गांव वालों से कहना, उन्होंने मैसेज भेजा कि भाई जितना भी आपके पास सामान है पका पका के लेके आओ ठाकुर जी के पास। सब दही, दूध, चावल, सब्जी, जो भी जिसको पकाना हो सकता था पका पका के बड़े बड़े गाड़े में भर के लाने लगे। अब ठाकुर जी खा ही रहे, अटक नहीं रहे। तो बाजू में थोड़े विलेज हैं, उसमें से एक विलेज का नाम है, बहुत थोड़े विलेजेस हैं, उनमें से उनका नाम पड़ गया है अनियोर। तो ठाकुर जी खाते थे और खाते खाते जब पेट नहीं भरता बोलते अनियोर अनियोर, और लाइए ऐसा बोला करते। तो वो सब नीचे के विलेज से सब खाना आता था, तो विलेज का नाम भी अनियोर हो गया भगवान के बोलने से कि अनियोर। भगवान ने काफी टाइम तक खाते रहे, इतना खा गया हो कुछ छोड़ा होगा किसी के लिए। तो भगवान बहुत खाए, तब से अन्नकूट की प्रथा चालू हो गई भगवान को लगाने की गिरी गोवर्धन जी के। तो ठाकुर जी बहुत खाए, खा के भगवान सो गए। रात को माधवेंद्रपुरी जी से कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी एक काम करो यार, अच्छे से नहलाया, खिलाया, पिलाया, पर अभी भी मेरा शरीर बहुत जल रहा है। आप उड़ीसा जाइए
और उड़ीसा जाके वहां से मेरे लिए चंदन लेके आई और मुझे चंदन का लेप लगाइए। और चंदन का लेप जब आप लगाओगे तो मेरी जो जलन है बरसों की वो मिट जाएगी। महादेवेंद्र पुरी मिडिल एज साधु थे उस वक्त। तो ठीक है कहते हैं मैं जाता हूँ। तो महादेवेंद्र पुरी चलने लगे। चलते चलते आप समझ सकते हैं वृंदावन से उड़ीसा जाना इट्स लाइक वन एंड टू अदर एंड। कई महीने चले तब वो उड़ीसा के नजदीक पहुंचे। उड़ीसा के नजदीक एक छोटी सी जगह है, वहां पे खीरचोर गोपीनाथ जी का मंदिर है। मैं उस गांव का नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम है उस गांव का। पर उस गांव में एक गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो वहाँ रात को मंदिर में रुके। वो मंदिर की स्पेशलिटी थी, वहाँ बहुत सुंदर खीर बनता था भगवान के लिए और वहाँ का खीर प्रसिद्ध था चारों तरफ। तो जब शाम को वो बैठे थे तो वहाँ पुजारी ने खीर का भोग लगाया गोपीनाथ जी के लिए। तो भोग हमेशा गिनी हुई कटोरिया में लगता था, 12 बड़ी बड़ी हांडी होती थी दूध की, उसके अंदर खीर भगवान को भोग लगाया जाता था और बड़ा स्वादिष्ट खीर होता था। तो महादेवेंद्र पुरी जब खीर देखा तो सोचने लगे कि आहा कितना सुंदर खीर लग रहा है, ये गोपीनाथ जी को दे रहे हैं, काश मुझे चखने को मिले तो मैं ऐसा ही खीर अपने गोपाल जी के लिए बनाऊं। उनके मन में ये विचार आ गया और ये विचार आने के बाद वो अपने आप को मारने लगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, भगवान के लिए भोग लगाया जा रहा है, मैं उसमें से खाने का सोच रहा हूँ, धिक्कार है मुझ पे, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। करके उठ के चले गए वहां से अपने आप पर गुस्सा करके। और वहीं पे बाहर चबूतरे में थोड़ी शॉप्स थी, वहां बैठ के भगवान का नाम जप करने लगे। अब ठाकुर जी तो परमात्मा स्वरूप से भी विराजमान है, बाहर अर्चा स्वरूप से विराजमान है। तो महादेवेंद्र पुरी जी की मन की बात समझ गए। जब वो पंडित जी माने पुजारी जी सब खीर बाद में भोग लग गया, उठा के वापस चले गए। रात हो गई, भगवान को सुला दिया। पुजारी रात को सो रहा है, ठाकुर जी सो नहीं पा रहे हैं। बोले मेरे भक्त की इच्छा थी खीर खाने की, बेचारा ऐसे ही भूखा बैठा है, अयाची का बस्ती वाला है, किसी से भिक्षा मांगने भी नहीं गया, कोई इस गांव में उसको जानता नहीं है, उसको भूखा है, मुझे नींद नहीं आ रही। उन्होंने पुजारी को सपना दिया। पुजारी को कहा कि भैया आज गांव में एक भिक्षुक आया है, साधु है, उसका नाम है माधवेंद्र पुरी, उसके लिए मैंने एक खीर चुरा के रखी है, आप उसको दे दो। वो सोचे अरे खीर कहाँ से चुराई, मैं तो खीर उस भगवान से लेके आया। तो बोले नहीं भैया तू सेवा करता है, ध्यान नहीं देता आजकल। हम लोग बहुत बार सेवा करते हैं ठाकुर जी पर ध्यान नहीं देते, ठाकुर जी क्या पहना है, कैसा पहना है, कैसे मुर्गी पकड़ी है, क्या किया है, कुछ भी नहीं। और ठाकुर जी बेचारे लक्ष्मी जी टेंशन में रहे कि भगवान का मुकुट ठीक में नहीं, ये ठीक नहीं है। पानी भी रखते हैं तो रख के चले जाएंगे, पता नहीं कि कैसे रखा। भोग लगा दिया तो भी खाना भैया जैसे एहसान करना, ऐसा कभी कभी हो जाता है सेवा, कि बहुत बिजी होते हैं हम सब लोग, तो बिजीनेस में सेवा करनी होती है। तो बहुत और हर रोज करने से कॉम्प्लेसेंसी आ जाता है कभी कभी। तो सोचता है तो घर का ही है ना, अभी क्या इसका इतना करना, तो फिर ध्यान नहीं रहता। पर वो लाला भी शर्मिला नहीं है, वो सामने से बता देता है कि ये बात रह गई। तो पुजारी जी जब मटकी लेके चले गए तो बोले भैया तू मटकी लेके गया पर काउंट वाउंट तो करता नहीं कितनी लेके गया। 12 रखी थी, 11 तू लेके गया, एक मैंने अपनी धोती के पीछे छुपा ली थी, चद्दर के पीछे। तो पुजारी को बोलता है अभी वो मटकी लेके जा और महादेवेंद्र पुरी को ढूंढ के उनको दे दे। बोले महादेवेंद्र पुरी को कैसे पहचानूं? बोले चिल्लाना जाके सब जगह पे कि हाँ महादेवेंद्र पुरी कौन है, ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए खीर चुराई है, तुम्हें देने के लिए आया हूँ। तो पुजारी जी उठे, स्नान करके भगवान के रूम में गए, दरवाजा खोल के देखा भगवान के चद्दर के पीछे एक उसमें मटकी के अंदर भगवान ने चुरा के रखी थी खीर की। वो तो एकदम खुश हो गया कि अरे बाप रे भगवान कितनी कृपा करते हैं अपने भक्त पे। मटकी लिया, भगवान को सुलाया और निकला मार्केट प्लेस में। अब उस वक्त तो टीवी चलता नहीं था उतना, तो सब 9 बजे सो जाते थे गाँव में, 8 साढ़े 8 बजे अंधेरा होता था, सब सो जाते थे। तो महादेवेंद्र पुरी जी बेचारे मिडनाइट के आसपास था, बैठे बैठे भजन कर रहे थे। तो वो चिल्ला चिल्ला के जाने लगा, यहाँ महादेवेंद्र पुरी कौन है, तुम्हारे लिए ठाकुर जी ने खीर चोरी किया है, तुमको देना है, महादेवेंद्र पुरी कौन है, चिल्ला चिल्ला के जाने लगा। तो महादेवेंद्र पुरी ने देखा कि कोई मेरे नाम का आवाज दे रहा है। उन्होंने कहा कि भैया मैं ही महादेवेंद्र पुरी हूँ, क्या है? तो बोला तुम्हारे वास्ते गोपीनाथ जी ने खीर चोरी किया है, तो तुमको ये खीर देने के लिए भेजा। महादेवेंद्र पुरी रोने लगे कि मेरे ठाकुर जी मेरे लिए कितना ध्यान रखते हैं, मुझे मन में आया कि मुझे खीर खानी है, तो ठाकुर जी ने मेरे लिए खीर चुराई। महादेवेंद्र पुरी ने खीर खाई, इतना अद्भुत स्वाद है खीर का।
माधवेंद्रपुरी ने खीर खाई और जो मटकी थी वो भी अपने पास रख ली माधवेंद्रपुरी ने, और जब तक जिए उस मटकी का थोड़ा थोड़ा पीस तोड़ के हर रोज खाते रहे, मिट्टी का। माधवेंद्रपुरी इतने खुश हो गए। फिर दूसरे दिन सुबह ठाकुर जी का दर्शन करने गए, ठाकुर जी का उपकार माना और फिर वो चल दिए उड़ीसा, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब यहाँ पे ज्यादा ठहरूंगा तो यहाँ सब लोग बात करने लगेंगे कि यही आदमी जिसके लिए भगवान ने खीर चुराया था, तो सब आके पाँव में पड़ेंगे, मेरा नाम बढ़ने लगेगा, तो मुझे मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। तो आई डोंट थिंक उनके पास कुछ मंदिर होगा, क्योंकि जब मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए तो आजकल के साधु के रूप में तो फिट ही नहीं होते वो। आजकल के साधु तो अपने बारे में लिख के पब्लिश करते कि मेरे बारे में जानिए मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, है ना, ये मेरी अपनी कहानी है, सुनिए, तो आप मुझे जान जाएंगे तो समझ जाएंगे मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मुझे ही सब कुछ आपको देना चाहिए। आजकल के साधु एडवर्टाइज करके घूमते हैं, किसी को पास जाएंगे तो बोलेंगे आपने हमारी कथा सुनी है, लीजिए हमारा सीडी सुनिए। अरे अपना सीडी खुद सुनने को किसी को देना, वो कितना अपना बढ़ाई करने की बात है। कोई और बोले तो ठीक है इनकी कथा अच्छी है आप सुनिए, और फिर आएंगे तो बोला हमारी कथा ऑर्गेनाइज करो, कुछ करो, कितना देंगे, 10,000 लेंगे ये 7 दिन का। तो ये साधु लोग और माधवेंद्रपुरी में जमीन आसमान का फर्क है। माधवेंद्रपुरी ने सुना कि अब मेरा नाम यहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि बात फैल जाएगी ना चारों तरफ कि गोपीनाथ जी ने इनके लिए खीर चुराया। आज कोई साधु के लिए गोपीनाथ जी खीर चुरा ले, बाप रे, वो साधु की तो कितनी प्रॉपर्टी हो जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि सब जगह पे इंटरनेट पे सब जगह पे फायर वायर सब जाएंगे, यही साधु है, अब गौशाला बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो आश्रम बना रहे हैं, मनी विल पोर लाइक एनीथिंग। माधवेंद्रपुरी वहां से भाग गए, उड़ीसा गए, राजा से प्रार्थना करके। उस वक्त चंदन इजीली नहीं मिलता था, तो राजा ने लिख के दिया कि इनको चंदन दीजिए। मुझे याद नहीं है कितने मण, पर 2-2.5 मण चंदन, एक मण माने 20 किलो होता है, तो 50-60 किलो चंदन माधवेंद्रपुरी अपने सर पे उठा के वापस जा रहे थे वृंदावन जगन्नाथपुरी से। वास्तव में वापस खीरचोर गोपीनाथ जी का मंदिर आया, तो रात को खाली विश्राम करने के लिए वहां पे रुके। तो भगवान ने उनको सपना दिया, गोपाल जी ने, और उनको कहा कि माधवेंद्रपुरी आपकी उम्र काफी हो चुकी है, आप ये 50-60 किलो चंदन उठा के आप लाएंगे अच्छी बात नहीं है, आप ऐसा काम करिए, मेज में और एक खीरचोर गोपीनाथ में कोई फर्क नहीं है। तब से भगवान का नाम खीरचोर गोपीनाथ हो गया। हम किसी का ऐसा नाम रख दे तो कितना गंदा लगेगा। कोई आदमी जैसे चावल चुरा के, जैसे पिज्जा चुरा के खाने की किसी का आदत हो तो बोले पिज्जा चोर प्रशांत आया कैसा लगेगा किसी को। भगवान को ये नाम शोभा देता है, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान के लिए रणछोड़ नाम रखा जाता है। माने जरासंध ने, और उन्होंने इतनी बार अटैक किया, उसके बाद भगवान भागे, रणभूमि छोड़ के भागे। भगवान का नाम रणछोड़ रखा गया। अब मेरे को इतना पसंद नहीं है मैं कुछ बोलूं, इसको आप लोगों की चिंता होती है। मैं कुछ गाँव में बोलूं पढ़ूं तो इतना आजकल थोड़ा प्रभावित करता है। तो गोपाल जी ने उनको सपना में कहा कि आप जो चंदन मेरे लिए लेके आ रहे हैं, तो मुझ में और ये खीरचोर गोपीनाथ में कोई फर्क नहीं है, आप उसको ही चंदन घिस के लगा दीजिए, क्योंकि आप कहाँ इतना दूर उठा के आएंगे चंदन। तो माधवेंद्रपुरी जी वहां रुक गए और चंदन घिस के ठाकुर जी को लगाया। मैं ये कथा कहने का मुझे मन इसलिए हुआ कि यहाँ भगवान के विग्रह के स्वरूप में जो कृपा करते हैं ये देखने को मिलती है। भगवान विग्रह के स्वरूप में बड़ी कृपा करते हैं, जो किसी को एक्सेसिबल नहीं है उसको सब चीज एक्सेसिबल करके देते हैं। हम लोग का कहाँ भाग्य कि मैं ये यशोदा की तरह भोग पका के ठाकुर जी को खिलावे, कहाँ भाग्य हमारे। हमारा तो मन ही सास भी कभी बहू से दूर नहीं होता, ठाकुर जी में क्या मन लगेगा हमारा। फिर भी ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हारे सब अवगुण में छोड़ के तुम्हारे घर आके बैठूंगा, और कैसे बैठूंगा, बिल्कुल असहाय स्थिति में बैठूंगा। ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं, सामने भोग लगा है तो फ्रिज खोल के ले नहीं सकते, वो डिपेंडेंट है कि कोई आके मेरे सामने रख के जावे और मुझे बोले कि लाला खा, तब खावे, है ना। इतना असहाय स्थिति भगवान पकड़ के बैठे हैं यहाँ पे। चाहते तो गोपाल जी
स्वयं ही कुछ सबके घर जाके खा लेते हैं। एक्चुअली वृंदावन में एक साधु थे महात्मा, वृंदावन में भिक्षा करने के लिए निकले। तो किसी मैया ने, आप वृंदावन में कहीं भी भिक्षा मांगने चले जाइए, आपको भिक्षा जरूर मिलती है। मैं तो बहुत से भक्तों को जानता हूँ जो ब्रज में जाते हैं, यहाँ बहुत अच्छे पोजीशन पे होते हैं, तो ब्रज में जाते हैं रहने के लिए और भिक्षा मांग के खाते हैं और जमीन पे सोते हैं, बाहर राधा कुंड पे पेड़ के नीचे सो जाते हैं। ऐसा 2-3 वीक, 1 महीना रह के वापस आता है। एक बस धोती, एक कुर्ता, बस उतना लेके जाता है। वहाँ कोई ना जाने वो कौन है, इस तरह से रहता है। और ब्रज में भिक्षा मांगने पर रोटी मिलती ही मिलती है, किसी भी घर से रोटी मिलती है। और खास तौर पे बरसाने में कहा जाता है, बरसाने में कोई भूखा नहीं सोता, राधा रानी बहुत ध्यान रखती है। तो कोई भी भूखा है, राधा रानी कहीं ना कहीं से उसके लिए खाना भेज देती है। एक्चुअली आप भिक्षा न मांगने भी जाओ, पर बरसाने में है तो राधा रानी मेक श्योर कि आपको भिक्षा मिल जाए। तो ब्रज में अगर आप कहीं और जगह पे हो, आप किसी के भी घर पे भिक्षा मांगो, भले उसके पास कुछ नहीं है पर आपके लिए रोटी उसके घर से निकले। तो ब्रज के सभी साधु लोग उसको मधुकरी कहते हैं, मधुकरी से खाते हैं। कई साधु लोगों को आदत होती है, एक बार भिक्षा करने जाएंगे और उनके फिक्स घर होते हैं, 4-5 घर कहीं मांगेंगे, वहां से 4-5 रोटी आ गई, 1 रोटी खाएंगे, बाकी की 4 रोटी जमीन के अंदर खड्डा खोद के दबा देंगे। हर रोज इसमें से 1 रोटी निकालेंगे, पानी में भिगो के खा लेंगे नमक के साथ। ये उनका आहार होता है दिन का, बस बाकी भजन में लगे रहते हैं 24 घंटा में। तो एक साधु आए थे वृंदावन में, सत्य घटना है। तो एक मैया के वहां भिक्षा मांगने के लिए गए, तो मैया ने भिक्षा दिया तो साधु बोले ये ऑफर्ड नहीं है ना रोटी, हमको ठाकुर को भोग लगाना है। तो मैया रोटी वापस दिली, न्यो आया क्या ब्रज में, पता नहीं होती ब्रज में कुछ अनऑफर्ड होता ही नहीं है। हमारे यहाँ अमनिया कुछ होता नहीं, अमनिया बोलते हैं उसको, अमनिया का मतलब है अनऑफर्ड। तो बोले हमारे यहाँ अमनिया कुछ नहीं होता, क्योंकि ठाकुर जी घर घर भागते रहता है चोरी करने के लिए। तो जो भी बनता है ब्रज में उसका भोग नहीं लगाया जाता, ठाकुर जी सामने से आके खा लेते हैं चोरी करके। इसलिए ब्रजवासी जो असल होते हैं उनके वहां भोग लगाते होंगे, पर ऐसी सिस्टम नहीं है कि भोग नहीं लगाया तो प्रसाद नहीं हुआ। जैसे बन गया उसको प्रसाद ही माना जाता है ब्रज के अंदर। तो महादेवेंद्र पुरी जी के ऊपर इतनी कृपा करी भगवान ने, वही भगवान यहीं पे विराजमान है। वो भगवान इतनी असहाय स्थिति में रहते हैं कि घर घर चोरी करते हैं, पर यहाँ हमारे सामने कहते हैं कि आप हमें खिलाइए, हमें आप दीजिए। और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये नहीं कि मेरा लड्डू गोपाल तुमसे ज्यादा अच्छा है। कई जगह पे ये देखा जाता है, किसी के पास जाए तो बस उसके भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा ही भगवान सबसे बेस्ट है। किसी और के मंदिर में जाएंगे तो उसका भगवान से हमको क्या मतलब है, हमारा भगवान बेस्ट है। उसके भगवान को तो मैंने देखे कई लोग प्रणाम भी नहीं करते, हमारे भगवान बेस्ट है। कहीं पे भी जाएंगे तो भी वहां के ठाकुर जी, एक नियम है कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के जो ठाकुर जी हैं उनका फोटो मंदिर में होना चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा करनी है। तो कई लोग उनका फोटो भी नहीं रखेंगे, नहीं हमारे जो भगवान है उसी का फोटो रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा। पर यहाँ जो साक्षी गोपाल, ये जो गोपाल जी है बता रहे हैं, मुझमें और खीरचोर गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। तो गोपाल जी की सेवा, यहाँ ठाकुर जी की अर्चा विग्रह में सेवा बड़ी सुलभ है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बंबई में रहते थे एक बार, तो किराए के मकान में रहते थे। उनके नीचे एक बनिया रहता था, तो बनिया का नाम मुझे नहीं याद है, घसिया राम कैसा कुछ नाम था उनका। उनकी पत्नी चल बसी। उनकी पत्नी चल बसने के बाद वो घसिया राम जी अपनी दुकान पे जावे और हर 2 घंटे में वापस घर पे आवे। तो एक बार भाई जी ने उनसे पूछा कि घसिया राम जी आप हर 2 घंटे दुकान से वापस आ जाते, कुछ बात है क्या? बोले नहीं जी, ये लाला की सेवा है हमारे घर में, अब लाला की माँ तो रही नहीं चल बसी, तो हम घड़ी आते हैं, बेचारा छोटा बालक है, उसको भूख लग जावे, प्यास लग जावे, किसको मांगने जावे, इसलिए मैं घड़ी आ जाता हूँ उसको खाना खिलाने, ये सब करने। थोड़ी देर के बाद घसिया राम जी सब कुछ छोड़ के वृंदावन चले गए लाला के साथ। और वृंदावन में रहते थे तो कहते थे कि एक दिन मेरे लालो मुझको लेके चलो जाओगे। एक बार भाई जी के पास मैसेज आया कि घसिया राम जी चले गए कहीं पे। तब पता चला कि घसिया राम जी ने एक चिट्ठी लिखी थी जमुना के किनारे पे। चिट्ठी में लिखा था कि आज मेरा लाला मुझे लेने आने वाला है, उसने मुझे जमुना किनारे बुलाया है, मेरे लिए कुछ सोच खोर मत करिएगा, सबको मेरा राम राम करके घसिया राम जी चले गए। तो लाला उनको लेके चला गया। ये जो भगवान की सेवा है, अपना एक परिवार का सदस्य समझ के करना चाहिए।
लाला का जो सेवा है एक छोटे बालक के रूप में है, तो उसको तो सहज वात्सल्य भाव हो जाता है उससे कि मेरा बच्चा है, ये है। अपने बच्चों के लिए एक दोस्ती का भाव हो जाता है कि मेरा सखा है, मेरा भाई है, मेरा बंधु है। और इसी तरह से बच्चों को भी ट्रेन करना चाहिए कि ये तेरा भाई है, इसकी आज तुझे सेवा करनी चाहिए। कुछ भी खाए उससे पहले उसको खिलाना चाहिए, उसको नहलाना चाहिए, बच्चों को सेवा देनी चाहिए भगवान की थोड़ी सी। उनको ये नहीं कहना चाहिए भगवान है पाप कर देता है, पाप लगेगा, ये सब। भगवान पाप नहीं देते किसी को। भगवान पाप देना चाहे तो हम लोग बच नहीं सकते, हम इतने पाप करते हैं, है ना। भगवान अगर पनिश करना चाहे तो हम कॉन्स्टेंटली टाइम आउट में ही रहते हैं क्योंकि हम इतना सब करते हैं। तो हमेशा तो पनिश करना चाहते, हमेशा पनिश फॉर्म में ही रहे, पर भगवान पनिश नहीं करना चाहते। भगवान हमसे प्रेम करना चाहते हैं और भगवान हमसे प्रेम पाना चाहते हैं। तो इसलिए कई लोग सोचते हैं कि भगवान का अर्चा विग्रह स्वरूप में सेवा करने से ठीक सेवा नहीं होने पर पाप लगेगा। कई लोग डरते हैं कि हमको राधा कृष्ण का सेवा नहीं करना, हमको ये नहीं करना, हमको जगन्नाथ जी का सेवा नहीं करना, पाप लगेगा। नहीं, पाप नहीं लगता। कोई ऐसा नहीं सोचता बच्चा होने से पहले कि अरे बच्चा हो जाएगा तो मैं उसका ठीक से ध्यान नहीं रखूंगा तो पाप हो जाएगा। नहीं, एक बच्चा है अपना तो उसका सेवा करना है। उसी तरह एक सदस्य है घर में, और ये तो ये भी नहीं बोलेगा सॉकर में ले जाओ मेरा आज जिम्नास्टिक है, मेरा मैथ का क्लास कुमान में ले जाओ। बेचारा कुछ भी नहीं बोलता, जितना दिया उतना खाएगा। कई कई घरों में तो दिन में खाली 2 बादाम और 3 दाना शक्कर खाता है फिर भी बहुत हेल्दी और हैप्पी रहता है। ये बहुत दयालु है ठाकुर जी। तो मैं नहीं कहता कि 3 दाना शक्कर और 2 बादाम दिए जाए उनको ठीक से जो हम खाते हैं वही खिलाना चाहिए। क्योंकि जब कोई माँ बाप ऐसे देखे हैं कि अपने बच्चे से छुप छुप के कुछ खावे, नहीं उसको नहीं देने का, इज वेरी बैड। उसको खाली सूखी रोटी दो कल की, हम अच्छा पका के खा लो। कोई माँ बाप ऐसा सोच भी नहीं सकते। माँ बाप भले अपने आप भूखे रहे पर बच्चे को अच्छा खाना खिलाएंगे। उसी तरह गोपाल जी के लिए अच्छा खाना बनना चाहिए, उनको अच्छे से खिलाना चाहिए। गोपाल जी हो, गौर निताय हो, किशोर किशोरी हो, राधा कृष्ण हो, जगन्नाथ जी हो, भगवान प्रेम के बड़े भूखे हैं। और भगवान समझते हैं कि सब लोग अपने घर में ठाकुर जी नहीं रखते हैं, इसलिए भगवान भक्तों से कहते हैं कि आप मंदिर बनाए, मंदिर में मेरी स्थापना करें। मंदिर का बहुत महत्व होता है क्योंकि उसमें ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। तो घर में भी मंदिर है, पर मंदिर में एक और फायदा होता है कि साधुओं का संग मिलता है, सत्संग मिलता है। घर में तो हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही है। अब वाइफ के लिए हस्बैंड को साधु मानना और हस्बैंड के लिए वाइफ को साधु मानना थोड़ी कठिन बात है। और बच्चे को अपना स्वामी बन के उसको भी भक्त मान के उसकी सेवा करना थोड़ी कठिन बात है। हो जाए ऐसा तो बहुत अच्छा है, और ऐसा थोड़ा प्रैक्टिकली देखा जाए तो कठिन हो जाता है थोड़ा सा, है ना। क्योंकि हमारे लिए उसके लिए कुछ और भाव है, अपने पति पत्नी बच्चों के लिए। पर मंदिर में भक्त मिल जाते हैं, भक्तों का संग मिलता है। तो भक्तों के संग के अंदर भगवान का दर्शन करना, मंदिर में सेवा मिलती है, भगवान को श्रृंगार करने की, भगवान को आरती उतारने की सेवा मिलती है, भगवान के लिए कुकिंग करने की सेवा मिलती है। तो ये सब सेवाएं मंदिर में उपलब्ध है। अमरीश महाराज 24 घंटे भगवान की सेवा में रहते थे। किस तरह से? अपने हाथ से भगवान जी का मंदिर का मार्जन करते थे। मंदिर का मार्जन करना, जिस घर में ये पूरा घर, ये मत समझिए कि आप मॉर्गेज पे कर रहे हैं तो आपका है, क्या डीड पे आपका नाम है तो आपका है। जिस दिन से ठाकुर जी घर में आए, ठाकुर जी घर अपना लेते हैं, हथिया लेते हैं। एक्चुअली उन्हीं का घर हो जाए, आप मानो ना मानो अलग बात है, पर घर ठाकुर जी का हो जाता है। अब घर का कोई भी कोना वैक्यूम करे वो मंदिर मर्जनादु ही हो जाता है। ये भाव होना चाहिए। ये नहीं कि अब कहाँ बीवी ने वैक्यूम पकड़ा दिया, अरे बाप रे, नहीं। जितना वैक्यूम होता है उतना हमारा हृदय में साफ होता है। बाथरूम साफ करना, किचन साफ करना, और भगवान का रूम तो साफ होना ही चाहिए हमेशा। तो मंदिर का मर्जन करना। अमरीश महाराज अपनी दोनों आंखों से भगवान का सौंदर्य का दर्शन करते हैं। भगवान अपार सुंदर है। और आप देखिएगा, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, जिसके जिसके घर ठाकुर जी है, अगर प्रेम से उनकी सेवा होती है तो ठाकुर जी का चेहरा आप जैसा लगना चालू हो जाता है। आप देखिएगा बहुत सारे घर में ठाकुर जी जो उनका सेवक है उसके जैसे ही दिखते हैं, और उनके सेवक भी थोड़े थोड़े ठाकुर जी से दिखने चालू हो जाते हैं। उद्धव जी का इतना प्रेम था भगवान के साथ, उद्धव जी बिल्कुल भगवान जैसे दिखने लगे। और मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, अभी आप नोटिस करिएगा, किसी किसी के घर पे जाएगा, उनके ठाकुर जी को देखेगा, लाला लाली या गौर निताय, वो उनके जैसे ही दिखना थोड़ा थोड़ा चालू हो जाता है, क्योंकि दोनों में इतना प्रेम बन जाता है।
और वो भी समझते हैं कि अभी ठाकुर जी खुश हैं, अभी नाखुश हैं। हमको नहीं पता चला, हमको लगा कि क्या गप्पे मार रहा है, और वो सोचेगा कि नहीं मैंने कल इसको ये करना भूल गया था तो ठाकुर जी बड़े नाखुश हो गए। कल ही हमारे यहाँ एक भक्त आए थे तो बोले थे मैंने ठाकुर जी को ललिता को बाल पहनाया, फिर निकाल दिए तो बड़ी नाराज हो गई हमसे, फिर वापस पहना तो बड़ी हंसने लगी। अभी कोई और सुनेगा तो बोले क्या गप्पे मार रहा है, पर जिसको अनुभव हो उसको अनुभव हो ना ये सब बात का। तो ठाकुर जी से लाड लड़ाना चाहिए, क्योंकि प्रेम का भूखा है, बेचारा घुटनों के बल चलता है। अब किसी का घर में मंदिर किचन के पास नहीं है तो उसको खाने के लिए मुश्किल होती है ना, तो जाके उसको घड़ी घड़ी कुछ खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। और छोटा बच्चा है तो खेलता बहुत है। आप जानते हैं बांके बिहारी जी के वहाँ मंगला आरती नहीं होती। बांके बिहारी के वहाँ मंगला आरती नहीं होती क्योंकि एक बार एक पुजारी जी सुबह सुबह आरती के लिए आरती करने के लिए दरवाजा खोला तो ठाकुर जी गायब। ठाकुर जी गायब तो सोचे ठाकुर जी कहाँ गए, तो हरिदास जी स्वामी हरिदास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे ठाकुर जी तो रात को रास खेल के आए थे, तो मेरे साथ ही मेरे खटिया पे सो गए थे रात को रास में, तो अभी तक आए नहीं मंदिर में। तब इनको पता चला कि रात भर ठाकुर जी गायब रहते हैं रास खेलने के लिए। तब सोचे कि बेचारा रास खेल को आए हो, इतना थका होगा तो सुबह सुबह उठा के कहाँ आरती करे, है ना। बच्चा पार्टी वार्टी बना के रात को 2-3 बजे आए, और फिर किस माँ बाप की ऐसी इच्छा हो कि उसको 4 बजे उठा के बोले कि भैया ले अब तेरी आरती उतारूंगा बैठ मेरे साथ। तो उनको लगा कि लाला को इतना हैरान नहीं करना चाहिए, तो उनके वहां मंगला आरती बंद हो गया। तो इस तरह से भाव होता है भक्तों का, हाँ, कि लाला बहुत खेल कूद के। हाँ, गुरु महाराज हमेशा बताते हैं कि जिसके घर लड्डू गोपाल की सेवा है उसको घड़ी घड़ी भगवान को कुछ खिलाना चाहिए। बोले क्यों, तो बोले छोटो लड़को है, 4 पांव से चलतो है, बहुत थक जाता है, बहुत खेलकूद में रहता है। आप छोटे बच्चों को देखिए, ये लोग जितना खेल कूदते हैं इतना ही हम दौड़े भागे ना तो एकदम फिट रहेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बच्चे इतना दौड़ भाग करते हुए, जितना दौड़ भाग करते हुए भूख उनको ज्यादा लगती है, तो वो बेचारा एक्सपेक्ट करता है कि मैया कुछ खिलावे। अब यशोदा मैया थी तो खिलाती थी, अब हमारे घर पे आए तो उनको हमें ध्यान से खिलाना चाहिए। कई भक्त मैंने देखे हैं, भगवान का प्रसाद भोग का टाइम हो गया तो घर पे आ जाएंगे, कहीं पे भी होंगे, क्योंकि भगवान को एक आदत लग जाती है कि 12 बजे खाना मिलेगा। हमारे अभय को टाइमिंग है, सुबह 6 बजे ब्रेकफास्ट, मेरे 6-6:30 के बीच में ब्रेकफास्ट चाहिए ही, उसका आराम बच जाता है। 12 बजे लंच माने लंच, 10 बजे स्नैक माने स्नैक, सब टाइम से सेट है ना। हमारा भी ऐसा स्टमक सेट हो जाता है ना टाइम से, 11 बजे भूख लगती है, 6 बजे भूख लगती है, तो इनको क्यों नहीं होगा। तो जब हम कहीं बाहर जाए तो प्रबंध होना चाहिए उनके लिए कि आपको, और सबसे बेस्ट प्रबंध है मन से खिला देना। कभी कुछ भूल जाए प्रबंध करना, एक्चुअली बताने वाली बात नहीं, पर हम लोग कभी कभी बाहर निकलते हैं, ठाकुर जी के सामने इतना ढेर सारा खाना छोड़ के जाते हैं कि भैया हम बाहर जा रहे हैं, आप जरा खुद सेल्फ सर्विस कर लीजिए, अमेरिका में रह रहे हैं तो ठाकुर जी सेल्फ सर्विस कर लेते हैं। और कभी टाइम हो जाता है, याद आता है कि 12 बजे हैं, तो उनको बोलते हैं कि भैया जरा मन से भोग लगा लेते हैं। तो मानसी सेवा एक स्वरूप है, मानसी सेवा करने के लिए भक्तों का अंग रहता है, दिन में 4 या 5 बार मानसी सेवा करते हैं। सुबह उठ के भगवान को उठाते हैं, और बहुत अच्छे भगवान को उठाने के भी भजन होते हैं। जागने जादवा कृष्ण गोवाड़िया, तुझ बिना कीनू कौन चारे। जागने जादवा, भगवान कैसे गाली दे के बात करते हैं। जादवा माने जादव कुल के है, कृष्ण गोवाड़िया, एक गोप बालक कृष्ण, तुम बिना ये गालियां चराने कौन जाएगा, जागो जागो करके भगवान को जगाते हैं। तो इस तरह से सुबह उठ के, जैसे ही उठे मन में इस तरह से आदत होती है कई भक्तों को कि वो भगवान के लिए कुछ भजन गा रहे, उसको प्रभात के भजन बोलते हैं। इसमें भगवान को उठाए जाने का भाव होता है। भगवान को दातून कराने के लिए अच्छा नीम का दातून, जमुना का जल भर के लाते हैं भक्त मन से ही। सुबह सुबह कंचन की झाड़ी के अंदर सोने की, उसमें जमुना का जल रखा है, दातून है। और कई भक्त कभी भगवान को बेड टी पिलाते हैं, मानो उठ के ही सीधा उनको रस मलाई ऐसा सब खिला दिया। नहीं, एक्चुअल में इस्कॉन में सुबह प्रभुपाद जी ने नियम किया है, भगवान को 4:30 बजे उठाने पर सीधा उनको मिठाई खिलाई जाती है। भगवान को मिठाई बड़ी, वो भी दूध की मिठाई होती है, मावे की। तो कभी रस मलाई, कभी पेड़ा, ये सब बना के उनको भगवान को खिलाता है। भगवान उठते ही खाते हैं सबसे पहले। और मैया यशोदा तो उसको कलेवा कराती थी। भगवान उठते थे, उठते ही उनको रात की चपाटी और ताजा माखन चपाटी के ऊपर रख के ठाकुर जी को खिलाया करती थी कलेवा।
तो भगवान उसको याद करते हैं। जब मथुरा गए तो जा दिन से मैं ब्रज को बिसरो, कोई न कहो कन्हैया, कोई न दियो माखन रोटी, कोई न करे कलेवा। तो जब से मैं ब्रज से गया हूँ कोई कन्हैया नहीं कहता मुझे, और कोई मुझे यहाँ माखन रोटी है। सुबह उठता हूँ तो मैं तो यहाँ राजकुमार हूँ, तो दासिया और दास आके खड़े हो जाता है कि साहब जी नहा लीजिए। अब उनके सामने नहाए बिना खाना भी तो ठीक नहीं लगता ना। बोलेंगे क्या गवार। वसुदेव जी बहुत कंप्लेन करते थे नंद बाबा की, क्या मेरे बच्चे को गवार बना के भेजा, 11 साल का हो गया, ABCD लिखना नहीं आता, क ख ग घ नहीं लिखता, स्कूल नहीं भेजा, क्या काम करवाया, गाय चरवाई उससे, जूता नहीं पहनता, मुकुट नहीं पहनता, ठीक से कपड़े नहीं पहनता, ब्रश करता है नहीं करता कुछ पता नहीं, सुबह उठ के खाना मांगता। बहुत ट्रेनिंग, इसलिए भगवान को 12 साल के बाद पढ़ने के लिए भेजा गया सांदीपनि मुनि के वहां। भगवान बहुत लेट उम्र में पढ़े, हमको लगा इसको राज्य चलाना है, पढ़ाई लिखाई नहीं आती, हिसाब किताब कैसे देखेगा। तो वसुदेव जी बड़ा गुस्सा करते थे नंद बाबा, उनके जो भाई ही थे नंद बाबा के, बड़ा गवार, गांव का एकदम गवार लड़का बना के भेजा है। तो ठाकुर जी वहां सुबह उठते थे तो वो गांव वाला स्टाइल नहीं चलता था उनका, वो नहीं पहले ब्रश करो उसके बाद खाना मिलेगा। आजकल तो अमेरिका आने पर तो रात का भी ब्रश का नियम लग गया है, तो रात को सोने से पहले माँ डांटती, बेटे ब्रश किया, ब्रश किए बिना सोएंगे कैसे। ठाकुर जी को मैया नहीं डांटती थी, ब्रश किया कुछ भी नहीं, ठाकुर जी पान चबा के रात को सो जाते थे। भगवान को पान खाने की बड़ी आदत है। आपको में से किसी को अगर अच्छा लगे तो ठाकुर जी के लिए पान बना के भी खिलाना चाहिए। आप देखेंगे राधा रानी और श्याम सुंदर जब खड़े होते हैं तो राधा रानी का हाथ ऐसे होता है, तो ऐसे क्या वो हाथ में पान बीड़ी लेके खड़े रहते हैं। आप देखिएगा नजदीक से, ग्रीन कलर का पान बीड़ी रहता है। और कई भक्तों की अभिलाषा होती है कि भगवान का मुंह का चबाया हुआ पान हमें प्रसादी के रूप में मिले खाने को। एक्चुअली भाई जी की बात है, मैं आपको बताता हूँ। भाई जी की बात है, दो भक्त थे, दो भाई थे, वृंदावन में रहते थे। वृंदावन में रहते थे और भगवान से बड़ा प्यार करते थे। एक बार भगवान की कृपा से वो कहीं पे ब्रज में परिक्रमा कर रहे होंगे, उनको एक नुपुर मिल गया। नुपुर मिल गया तो उनको लगा ये नुपुर बड़ा कीमती लग रहा है, हमने कभी ऐसा नुपुर। अब भी की बात है, मैं भाई जी थोड़े साल पहले शरीर छोड़े, ये 50 साल पहले की आसपास की बात होगी, इतनी पुरानी बात नहीं है। तो उनको नुपुर मिला, तो फिर सखिया कोई लड़कियां थी तो उस वहां उन्होंने देखी, तो आई उनके पास कि बाबा हम लोग यहाँ पे हमारा नुपुर खो गया है, आपको कहीं मिला है? तो बोला हाँ लाली, हमको अभी यहाँ से एक नुपुर मिला। तो लालिया उनसे नुपुर लेके चली गई। तो उन लालियों का दर्शन करते हुए उनको बहुत अद्भुत आनंद हुआ कि ये ऐसी लाली भी हमने आज तक बरसाने में ब्रज में देखी नहीं करके। उनका मन उनकी तरफ खींचा रहा। लाली माने छोटी लड़कियों को ब्रज में लाली कहते हैं। जब शाम को आके सो गए अपने घर पे, नींद में उनको सपना के अंदर राधा कृष्ण का दर्शन हुआ, और वही सब जो लालिया उनसे नुपुर लेके गई थी उनके साथ दिखी, ललिता विशाखा। और उन्होंने भगवान का चबाया हुआ पान बीड़ी उन्होंने उनको प्रसादी के रूप में दिया, और उन्होंने बोला कि अभी खाओ। वो बोले घर ले जाते हैं हमारे लिए थोड़ा सा। तो बोले नहीं अभी खाओ। तो बोले नहीं अभी नहीं खाएंगे, अभी थोड़ा खाएंगे, थोड़ा हमारे पास बचा के रखेंगे। तो उनको मुख में उन्होंने खिलाया, उन्होंने थोड़ा अपने पास बचा के रखा। एकदम उनकी नींद खुल गई तो उनको लगा क्या अद्भुत सपना देखा हमने। नींद खुली तो मुंह में पान का स्वाद था उनका, और उनके पास एक रुमाल के अंदर बाकी पान की बीड़ी बची हुई थी। सोचिए, और ये पान की बीड़ी उन्होंने पता नहीं चला अब करे क्या इसका। तो वो आए भाई जी के पास, अनंत प्रसाद पोद्दार जी के पास, और पोद्दार जी के पास बैठ कर उन्होंने पूरी वृतांत सुना। अपना नाम किसी को बताने के लिए उन्होंने मना किया था। तो पोद्दार जी ने किसी को उनका नाम नहीं बताया कि कौन थे ये। और इस तरह से भगवान की सेवा हमको साक्षात मिलती है। राधा रानी पान खिलाती, तो भगवान को पान खाने का शौक है। इस तरह से भगवान को लाड लड़ाना चाहिए, पान भगवान को बना के खिलाना चाहिए। छोटा स्वरूप है तो मक्खन दूध में से बना के खिलाना चाहिए उनको। दही खूब खाते हैं ठाकुर जी, छाछ वगैरह खूब खाते हैं। तो इस तरह से ठाकुर जी की सेवा का मौका मिलता है, और खास तौर पर मंदिर पर ये सब सेवा बहुत सुलभ है, भक्तों के साथ करने को मिलती है। इसलिए मंदिरों का बहुत महत्व है, और हो सके तो किसी न किसी मंदिर से अपना संबंध रहना चाहिए, जिससे भक्तों का संग मिले और भगवान की सेवा किस तरह अच्छे से की जाए ये हमको पता चले। हम लोग जब हैरिसबर्ग में आए 2003 में,
घर से सत्संग चालू हुआ था, तब एक भक्त आते थे और तब घर से सत्संग चालू हुआ, क्योंकि मंदिर यहाँ से 60 माइल्स दूर गीतानगरी में मंदिर था। तो 98 में हम लोग हैरिसबर्ग आए थे, पर हर रोज गीतानगरी जाते थे, तो फिर मुश्किल हो गया जाने का, गीतानगरी भी हर रोज हर वीकेंड में जाना। तो घर पे सत्संग चालू किया, भगवान की कृपा से धीरे धीरे भक्त भी जुड़े और सत्संग बढ़ने लगा। आज 10-11 साल हो गए सत्संग को। हम लोग फिर घर से निकलकर हॉल में किराए पे हॉल लेके करने लगे, फिर हॉल भी छोटा पड़ने लगा, तो फिर हरि मंदिर करके एक सनातन धर्म का मंदिर है, वहाँ पे सत्संग करने लगे। और वहाँ बहुत अच्छी जगह है सत्संग करने के लिए, भगवान सीताराम लक्ष्मण जी वहाँ विराजमान हैं। पर प्रॉब्लम ये होता है कि हरि मंदिर में भी बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता वहाँ पे, क्योंकि वो जैसे पूरे साल में लास्ट ईयर हमको 20 फ्राइडे मिले थे वहाँ प्रोग्राम करने के लिए, बाकी 32 फ्राइडेज यू हैव टू सर्च फॉर अनदर प्लेस। और कभी कभी we get to know on Thursday or Wednesday that the temple won't be available on Friday। फिर एक दिन के अंदर जगह ढूंढना, सबको कम्युनिकेट करना, और जितनी बार प्रोग्राम हो सब सेटअप का सामान घर से लाओ, भगवान को घर से लाओ, उनको सेटअप करो। 2 घंटे में प्रोग्राम किया नहीं किया, they wanted us to vacate by 10 o'clock। तो भक्तों को भी